Hello everyone, welcome to Shubhra Ranjan IAS. Myself Karuna Mishra and I am the faculty for Science and Technology here. We are discussing the prelims answer key and let me take you to the Science and Technology section. The first question that we are going to discuss is about aerial metagenomics. Now before starting the questions, I would want to first tell all the students, now calm down, you have given your examination, hopefully everything will be fine. And second, those students who are going to appear in the next year examination, you have to understand there is a pattern which is being followed by UPSC. अगर किसी टॉपिक पे, if there is a topic on which there has been studies going on which is very important, you will find questions from those themes and the questions can be in depth also. जेनेटिक्स एक ऐसा एरिया है, बायोटेक्नोलॉजी में जेनेटिक्स एक ऐसा एरिया है जहाँ से डेप्थ में क्वेश्चन पूछा जा रहा है और वो इम्पॉर्टेंट है हर साल एग्जामिनेशन के लिए. सो सिमिलरली ऑन दोज लाइंस दे हैव आस्क्ड क्वेश्चन अराउंड एरियल मेटाजेनोमिक्स. अब बच्चे आपका ना जनवरी 2022 में इकोनॉमिस्ट के अंदर एक आर्टिकल आया था अबाउट स्निफिंग द डीएनए फ्रॉम द एयर. उस आर्टिकल को नाम ये दिया गया था कि नाउ यू कैन स्निफ द डीएनए फ्रॉम द एयर. अब उस आर्टिकल को बनाने के पीछे रीजंस क्या थे, लेट मी डिस्कस सो दैट यू अंडरस्टैंड व्हाट वाज द इंटेंशन बिहाइंड पुटिंग दिस क्वेश्चन. सो द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ए, that is collecting the DNA samples from the air in a habitat at one go. तो बेसिकली आप जो जीनोमिक्स की स्टडी करते थे किसी भी एक हैबिटेट की, हैबिटेट दैट इज द प्लेस ऑफ ड्वेलिंग, जहाँ पर कोई भी जानवर या किसी एक टाइप का फ्लोरा एंड फौना फ्लरिश करता है, लेट अस से ट्रॉपिकल फॉरेस्ट और डेजर्ट एट्सेट्रा. अब यहाँ पर व्हाट वाज द ट्रेडिशनल वे ऑफ कलेक्टिंग डीएनए, दैट यू यूज्ड टू सेंड रिसर्चर्स इन दीज एरियाज वेयर दे यूज्ड टू कलेक्ट सैम्पल्स फ्रॉम दी सॉइल, वाटर एट्सेट्रा. आपके जो बर्ड ड्रॉपिंग्स होते थे, फीकल मैटर होता था, हेयर एट्सेट्रा, उससे दे यूज टू कलेक्ट द डीएनए एंड दे यूज टू हैव एन एनालिसिस. और उस हैबिटेट का दे यूज टू हैव द मेटाजीनोमिक्स. व्हाट इज मेटा? मेटा मीन्स एवर चेंजिंग एंड जीनोमिक्स इज द स्टडी ऑफ जीन्स. सो अब इसमें जो एक नया एडवांसमेंट आया है दैट इज यू कैन नाउ डू इट एरियली ऑल्सो, दैट इज द सस्पेंडेड डीएनए. You can now detect the presence of any type of animal or a plant by sniffing out a DNA from the air also. तो ये जो आपका ऑप्शन डी है, this was what was being done before aerial metagenomics was developed. कि आप soil से और water body से you used to collect samples in order to understand what kind of or what variety of species live in a habitat. अब now comes to, let us go a step ahead, maybe it will help you in the next year examination, those who are giving in 24, that what are the areas where aerial metagenomics can be applied. So for example, animal trafficking. Animal trafficking में अगर कोई एक species है which is very rare species, जैसे आपका pangolin बहुत ज़्यादा trafficked animal है, orangutans are very much trafficked etc. So what you can do is you can sniff out the DNA, you can collect the DNA. आपको basically air samples में से identify करने हैं if the species which are not allowed to be traveled are being taken, let us say in the form of air, in ship cargoes. जैसे कोई cargo है जिसको otherwise maybe because of corruption etc. जो भी है, it has been marked as safe, but you can take the aerial sample and you can find out the DNA. आप invasive species को भी रोक सकते हैं before they become prominent in water, on land etc. जैसे आपकी जो hyacinth है, water hyacinth है, अगर आपको the moment you get the trace of the DNA that the water hyacinth is being developed here, you can find out and you can stop the growth of that particular invasive species. So we understood the answer of this question. We also understood why this question was asked and what are the possible applications. Let us move on to the second question, which is about micro satellite DNA. बच्चे मैडम सैटेलाइट भी है, डीएनए भी है, क्या करें इसमें? माइक्रो सैटेलाइट डीएनए जो आपका टर्म है, आई थिंक ये एनसीईआरटी में भी मेंशन्ड है, जो आपका ये आपको पता है पर आपको ये टर्म नहीं पता थी, दैट इज शॉर्ट टेंडम रिपीट्स, राइट? वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट्स, VNTR, STRs, ये हम बार बार पढ़ते हैं जब भी हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के बारे में पढ़ते हैं. डीएनए फिंगरप्रिंटिंग भी एग्जामिनेशन में आ चुका है. अब उन्होंने डायरेक्टली डीएनए फिंगरप्रिंटिंग ना पूछ के आपसे माइक्रो सैटेलाइट डीएनए पूछ लिया. तो आप ये जो शॉर्ट टैंडम रिपीट्स होते हैं, ये क्या होते हैं? ये कुछ पैटर्न्स होते हैं जो हर डीएनए में यूनिक होते हैं और रिपीट होते हैं, जो उस डीएनए को यूनिक बनाते हैं. जैसे आपका जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग होता है वो किस किस चीज़ के लिए यूज़ होता है?
पैटर्निटी इस्टेब्लिश करने के लिए, क्राइम इस्टेब्लिश, जैसे आपने देखा होगा कि अगर कहीं पे क्राइम होता है तो हेयर सैंपल्स कलेक्ट करते हैं, ब्लड सैंपल्स कलेक्ट करते हैं, जिसमें जनरली माना जाता है एक विक्टिम का होगा और एक अटैकर का होगा। तो अटैकर का डीएनए हम जब मैच करते हैं तो वो जो एक कोड होता है, दैट इज द शॉर्ट टेंडम रिपीट, ये कुछ 8 to 10 कोड्स का एक सेट होता है जो कि एक यूनिक होता है हर इंडिविजुअल का। अदरवाइज मोर देन 99% ऑफ द डीएनए ऑफ ऑल ह्यूमंस इज कॉमन, बट वो जो एक 0.01% जो आपका वेरिएबल है, जो यूनिक है, दैट इज कॉल्ड एज द माइक्रोसैटेलाइट डीएनए, विच इज़ यूज फॉर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग ऑल्सो। और इसकी जो एप्लीकेशन है, इट इज़ इन क्रिमिनोलॉजी, इट इज़ फॉर एस्टैब्लिशिंग पैटर्निटी, इट इज़ ऑल्सो यूज फॉर स्टडिंग द एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप अमंग वेरियस स्पीसीज। आपने जैसे एनिमल्स हैं, ह्यूमंस और मंकीज जो हैं, तो हमारा वो जो स्पेशलाइज्ड कैरेक्टर है कितना एक दूसरे से सिमिलर है, वो भी मैं स्टडी कर सकती हूँ बाय माइक्रोसैटेलाइट डीएनए। एक बहुत जेन्युइन कन्फ्यूजन इस क्वेश्चन में हो सकता था फ्रॉम ऑप्शन ए एंड डी, राइट। सो हाँ, डी में भी आपको कन्फ्यूजन हो सकता था, बिकॉज डीएनए फिंगरप्रिंटिंग और डीएनए स्टडीज़ आपकी एफिकेसी ऑफ ड्रग्स के लिए भी यूज़ होता है, बट अकॉर्डिंग टू मी द आंसर इज ए। Now coming to the third question. The third question is about carbon fiber, also called as graphite fiber. देखिए, कार्बन नैनो ट्यूब्स के ऊपर यूपीएससी एग्जॉस्टिवली क्वेश्चन पूछते हैं। अब उन्होंने डायरेक्टली नैनो ट्यूब्स ना पूछ के कार्बन फाइबर के ऊपर क्वेश्चन पूछ लिया। आप जो एयरक्राफ्ट्स खरीद रहे हैं, जो बोइंग एयरक्राफ्ट भी है, जितने भी लाइट वेट एयरक्राफ्ट हैं, नाउ देयर कंपोनेंट्स आर बीइंग मेड अप ऑफ कार्बन फाइबर और ग्राफाइट फाइबर। ये बिल्कुल मैश टाइप का कार्बन, इसमें 90% से ज़्यादा कार्बन होता है। ये बिल्कुल फाइबर की तरह वोवन हो सकता है, इसकी शीट्स बन सकती हैं। तो अगर ये ऑटोमोबाइल और एयरक्राफ्ट में यूज़ हो रहा है, सो इट हैज़ वेरी हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, इट हैज़ हाई टॉलरेंस फॉर हीट, हाई टॉलरेंस फॉर द टेंसिलिटी। अगर आप इसके ऊपर डैमेज नहीं होता है, ये ब्रेक डाउन नहीं होता, हीट टॉलरेंस इसकी अच्छी है, इट कैन टॉलरेट अ लॉट ऑफ प्रेशर ऑल्सो, बिकॉज एयरक्राफ्ट में यूज़ हो रहा है तो एयर प्रेशर वेरिएंस भी बहुत ज़्यादा होगा फ्रॉम टेक ऑफ टिल दी अपर। सो ये मेरा कार्बन नैनो ट्यूब की जगह उन्होंने क्या पूछ लिया है, कार्बन फाइबर, राइट। कार्बन फाइबर और ग्राफाइट फाइबर इज हैविंग सिमिलर प्रॉपर्टीज, that is higher tensile, not all the properties, right, but similar properties, अच्छी tensile strength होती है, durability होती है, etc. Now this could have been a problem creating statement, क्योंकि ये मुझे ऐसा लगता है majority बच्चों को पता होगा that one is correct. But can carbon fibers once used cannot be recycled? No, they can be recycled. So the answer here is again A, that only first statement is correct. Now coming to the fourth question, which says that the detection of car crash and deployment of airbags, detection of accidental free fall of laptop and then immediate turning off of the hard drive, detection of tilt of a smartphone which results in the rotation of display. All of these are the functions of accelerometer. तो सबसे पहले what is an accelerometer? An accelerometer is a device which can detect the change or the rate of change of velocity. तो ये जो rate of change of velocity है, ये कौन डिटेक्ट करता है? एक्सेलरोमीटर। अब एक्सेलरोमीटर हैज़ सच अ ह्यूज एप्लीकेशन, आपको इतनी ज़्यादा एप्लीकेशंस इसकी मिलेंगी, जैसे कि येस, ऑल द 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। सबसे पहले द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑल 3. इट हैज़ एप्लीकेशन इन एयरबैग। जैसे ही आपकी गाड़ी हिट कर दी है कहीं पे, तुरंत एयरबैग्स दे ओपन इट। आई होप यू नो एयरबैग्स, जो कार्स होती हैं उनमें सेफ्टी के लिए एयरबैग्स लगाए जाते हैं, ताकि कोलिजन के टाइम एयरबैग आपकी बॉडी पे आए और आप, मान लीजिए कोई आगे से कार आ रही है, ट्रक आ रही है, उससे आप ना टकराएं और बॉडीली डैमेज ना हो। तो ये कैसे हुआ? क्योंकि कार एकदम से हॉल्ट हो गई, एकदम से रुक गई। तो क्योंकि देर इज अ चेंज इन द वेलोसिटी, hence the airbags become activity. You see there is a common pattern here, that whenever there is a sudden change in the velocity, the accelerometer starts working. आपके जो AR VR सेट्स होते हैं, ऑगमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी सेट, जिसमें आप गेमिंग करते हैं, उसमें भी देर इज़ अ चेंज इन वेलोसिटी, एक्सेलरोमीटर की वहाँ भी एप्लीकेशन है। ड्रोन्स के अंदर एक्सेलरोमीटर की एप्लीकेशन है। देन यू हैव एप्लीकेशन इन स्मार्टफोन, यू हैव एप्लीकेशन इन ऑटोमोबाइल्स। सो एक्सेलरोमीटर, कहीं भी अगर आपको लगता है कि जहाँ पर देर इज़ अ सडन चेंज इन वेलोसिटी, एक्सेलरोमीटर हैज़ द एप्लीकेशन. So the answer to this is all 3 are correct.
Now coming to the fifth question, which is with reference to the role of biofilters in recirculating aquaculture, also called as RAS system. ये विकासपीडिया के ऊपर आपको इसके अंदर बहुत प्यारा एक राइटअप मिलेगा. बायोफिल्टर्स आपका बेसिकली पिसीकल्चर या फिर एक्वाकल्चर जहाँ पे होता है कमर्शियली ऑन अ लार्ज स्केल, वहाँ पे यूज़ होते हैं. बच्चे ये हैं क्या? ये पॉइंट्स पे जाने से पहले मैं आपको बताती हूँ एंड देन वील सॉल्व दिस आंसर टुगेदर. तो मेरा जो रीसर्कुलेटिंग एक्वाकल्चर सिस्टम है, द टर्म हियर, द कीवर्ड इज रीसर्कुलेटिंग, यानी वही एक कॉमन पूल है जिसके अंदर मुझे एक्वाकल्चर करना है, रनिंग वाटर नहीं है. तो जो फिशेज़ हैं, फिशेज़ को मैं दाना डालती हूँ, कुछ दाना वेस्ट हो जाता है. व्हाट इज़ दाना और एनी काइंड ऑफ फूड, ये जो फूड है ऑर्गेनिक मटीरियल, इफ इट रिमेन्स इन दी वाटर इट विल स्टार्ट रॉटिंग, तो आपका एक्वाकल्चर या पानी का एनवायरनमेंट ख़राब हो जाएगा. जो फिशेज़ हैं वो अपना फीकल मैटर भी लिविंग मटेरियल है तो फीकल मैटर भी रिमूव करेंगी. दिस फीकल मैटर और विच इज़ रिच इन अमोनिया, ये बहुत ज़्यादा अमोनिया होता है इसके अंदर, वो भी आपका जो पानी है उसकी क्वालिटी को ख़राब कर देगा, वो उसको टॉक्सिक बना देगा. तो मेरा ये जो रीसर्कुलेटिंग एक्वाकल्चर है ना, इसमें स्टेजेस होती हैं. जैसे फर्स्ट स्टेज में मैकेनिकल रिमूवल ऑफ डर्ट, तो जैसे कोई भी ख़राब हाफ अनईटन फिश फीड है या कोई भी फिजिकल, जैसे पत्ते गिर गए या कुछ भी, एनीथिंग विच कैन बी मैकेनिकली रिमूव्ड और फिजिकली रिमूव्ड, द फर्स्ट लेयर इज रिमूवल ऑफ दोज इम्प्योरिटीज. द सेकेंड लेयर इज इट हैज़ बायोफिल्टर्स जिनमें ना बच्चे बैक्टीरियाज होते हैं, एंड दीज बैक्टीरियाज दे कन्वर्ट अमोनिया इनटू डिफरेंट टाइप्स ऑफ नाइट्रेट्स which keeps the health of the ecosystem of the aquaculture system of that particular circular system healthy. यानी वहाँ से आपने अमोनिया रिमूव कर दिया है ताकि आपका जो सिस्टम है, वो जो वेस्ट है, वो उसको टॉक्सिक ना बनाए. सो आई नो दैट बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट. सो इसमें बाय द सिंपल मेथड ऑफ एलिमिनेशन आई कैन आंसर दैट ऑल 3 आर करेक्ट. अगर इसमें ये फर्स्ट नहीं होता by removing uneaten fish feed, so actually the most accurate would have been biofilters convert ammonia in fish water to nitrate. Basically ammonia treatment plant होता है आपका recirculating aquaculture system RAC, but इसमें क्योंकि एक mechanical removal of impurities का भी setup होता है, hence the first option is also correct, hence the answer is 3. Now coming to question number 6. In question number 6, you have Cepheids, nebulae and pulsars. This is basically जब भी आप you look into the concepts of the life cycle of a star. In the life cycle of a star या origin of the universe में ये सारी terms आती हैं. जैसे for example, it is asking which of the pairs are correctly matched. Cepheids are giant clouds of gas and dust in the space. No, it is the nebula which is the giant cloud of gas and dust. Cepheids are in fact the stars which brighten and dim periodically. तो ये interchange है. They brighten and dim periodically and in fact they are used for calculating the distance. Cepheids जो हैं ये distance calculate करने के काम आते हैं because based on the magnetic field they brighten and dim periodically. Pulsars on the other hand are having very strong magnetic field. These are not the neutron stars which are formed when massive stars run out. No, this is not correct. In fact, they have very strong magnetic field. They give out very strong beams. Pulsars बहुत दूर से दिख जाते हैं whenever they are crossing. So they have very strong energy. They have very strong beam. So neither third statement is correctly matched. So the answer here is D. None of them are correctly matched. Now coming to question number 7. Which of the following countries has its own satellite navigation system? Now my classroom students would agree that I told them that there will be a question on satellite navigation system. Why? Because ISRO chief and government of India has time and again said that we are going to upgrade NAVIC. NAVIC, which is the navigation system of India, IRNSS, that is Indian Regional Navigation Satellite System. इसको हम अपग्रेड कर रहे हैं. इनफैक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज नाउ टेलिंग द मोबाइल मैन्युफैक्चरर्स दैट प्लीज इंक्लूड नाविक इन योर हैंडसेट्स. तो क्योंकि नाविक इतना ज़्यादा क्वेश्चन में था, देर आर ओनली फ्यू हैंडफुल नेविगेशन सिस्टम्स ऑफ द वर्ल्ड. आपका यूएसए का नेविगेशन सिस्टम है, दैट इज जीपीएस. यूरोप का नेविगेशन सिस्टम है, दैट इज गैलीलियो. देन यू हैव ग्लोनास बाय रशिया. QSZ जो आपका SS है, QZSS है, दैट इज ऑफ जापान. द आंसर हियर इज जापान.
Then you have India's regional navigation system, that is IRNSS, and you have Baidu navigation system, that is of China. So none of these have their own navigation system. China has its own navigation system. In fact, India and China are the only countries which have regional navigation system. बाकी जो 4 नेविगेशन सिस्टम है कौन कौन से, चाइना का, यूरोप का, यूएसए का और रशिया का, ये ग्लोबल कवरेज के हैं, ये रीजनल कवरेज का है. सो द आंसर हियर वुड बी डी. नाउ कमिंग टू द 8th क्वेश्चन. अगेन क्लासरूम स्टूडेंट्स वुड अग्री कि कुछ क्वेश्चन जो होते हैं वो दिखते ऐसे हैं कि शायद करंट अफेयर्स के हैं बट होते बेसिक अंडरस्टैंडिंग के हैं. सो दिस इज अबाउट द मिसाइल सिस्टम. सो इट सेज दैट ballistic missiles are jet propelled at subsonic speeds throughout their flight. No, इसमें जो keywords है that is ballistic missile and throughout the field. तो इसमें actual जो मेरा keyword है वो क्या है, ballistic missile and throughout their flight. सबसे पहले अगर मुझे कुछ भी नहीं पता मैम what is jet propelled, what are subsonic speed, मैम subsonic क्या 1 मार्क से कम होती है, क्या होती है, नहीं. क्या ballistic missile throughout their flight प्रोपेल्ड होती हैं? आर दे कम्प्लीटली गाइडेड? क्या उसमें फ्यूल यूज होता है? नहीं, उसमें पार्शली इट इज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी, तभी तो उसका नाम बैलिस्टिक है. एंड क्रूज मिसाइल्स आर रॉकेट पावर्ड ओनली इन द इनिशियल फेज. ये एक्चुअली उल्टा है. क्रूज मिसाइल्स आर प्रोपेल्ड थ्रू आउट देयर फ्लाइट. क्रूज मिसाइल्स और बैलिस्टिक मिसाइल्स के अगर बेसिक मैं अंडरस्टैंडिंग को लेके जाऊँ तो सबसे सीधी सी बात है कि जो मेरी बैलिस्टिक मिसाइल है वो पार्शली गाइडेड होती है, पार्शली फ्यूल्ड, पार्शली प्रोपेल्ड होती है. वाई? बिकॉज आफ्टर रीचिंग द हाइएस्ट पॉइंट इट फॉलोज द ट्रेजेक्टरी एज पर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी. इसलिए बैलिस्टिक मिसाइल में फ्यूल कंजम्पशन आधी फ्लाइट का होता है और बाकी का, क्योंकि देयर इज एन इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी, हेंस द टर्म बैलिस्टिक. बैलिस्टिक टर्म अगर यूज हो रहा है तो देयर इज एन इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी. ये रॉकेट इंजन बेस्ड होता है. अगर मुझे नहीं भी आता तो छोड़िए, मुझे बेसिक अंडरस्टैंडिंग तो है. क्रूज मिसाइल्स कौन सी होती हैं बच्चे? जो ब्रह्मोस है, जैसे फॉर एग्जांपल ब्रह्मोस मिसाइल्स थ्रू आउट गाइडेड होती हैं. उसका जो गाइडेंस सिस्टम होता है, जहाँ से ब्रह्मोस शुरू हो रही है लॉन्च से लेकर जहाँ पर टारगेट है वहाँ तक इट इज़ कम्प्लीटली गाइडेड एंड इट इज़ कम्प्लीटली प्रोपेल्ड. दीज आर ऑल्सो कॉल्ड एज सेल्फ प्रोपेल्ड मिसाइल्स. तो हेंस the first statement is incorrect. Then you have Agni 5 missile, which is a medium range supersonic cruise missiles, while BrahMos is a solid fueled intercontinental ballistic missile. ये उल्टा है. आपकी जो अग्नि है that is a solid fueled ICBM and your BrahMos is a supersonic. In fact, when BrahMos was made, it was the fastest supersonic cruise missile on earth. So neither one nor two statement are correct. Now coming to the 9th question, which talks about the mercury pollution. In mercury pollution, it says that the gold mining activity is a source of mercury pollution in the world. सबसे पहले mercury crust में naturally पाई जाती है. So mercury के साथ सबसे बड़ी दिक्कत है कि even the trace amount of mercury 2 parts per million, अगर आप बहुत ज़्यादा भी सर्च करेंगे तो देर आर कंट्रीज, जैसे यूएस गवर्नमेंट ने लिमिट दी हुई है 2 parts per million की, कि उसके बियॉन्ड मर्करी आपकी बॉडी के लिए हानिकारक है. बट मर्करी इन जनरल इन एनी गिवन अमाउंट इज नॉट गुड फॉर योर बॉडी. मर्करी का वन ऑफ द बिगेस्ट सोर्स फिशेज होती हैं. तो फिशेज भी कैसे होती हैं? क्योंकि आपका जो वाटर रन ऑफ होता है, ओशंस में जो पोल्यूशन होता है, उससे भी मर्करी पोल्यूशन होता है. लेकिन मैन मेड एक्टिविटीज़ में इट इज़ द माइनिंग एक्टिविटी एंड द कोल बेस्ड थर्मल, आप जो फॉसिल फ्यूल्स जो बर्न करते हैं उससे सबसे ज़्यादा मर्करी पोल्यूशन होता है. सो स्टेटमेंट 1 and 2 are correct, and since statement 1 and 2 are correct, by simple elimination method the answer is all 3 are correct. Because मुझे ये पता है कि माइनिंग एक्टिविटीज़ की वजह से मर्करी पोल्यूशन होता है, बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स की वजह से मर्करी पोल्यूशन होता है, फॉरेस्ट फायर्स की वजह से मर्करी पोल्यूशन होता है, कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट इनफैक्ट आर द बिगेस्ट सोर्स ऑफ मर्करी पोल्यूशन ऑन अर्थ. सो द आंसर टू दिस इज सी. Now coming to the 10th question, that is with reference to green hydrogen. Green hydrogen fuel. Again classroom students would agree. I used to say it yet again and again that Gadkari साहब ने बोला है कि इंडिया बनेगा green hydrogen का hub. So if the minister, the cabinet minister is saying so, the topic becomes important because we are putting in money, we are putting in efforts to utilize green hydrogen for the energy needs of India and also to make sure that the environment is not damaged. So सबसे पहले
What are these statements? It can be used directly as fuel for internal combustion. It can be blended with natural gas. This I know, this is absolutely correct. It can be used in hydrogen fuel cell to run vehicle. This also I know is absolutely correct. आपको ये जो ये वाला स्टेटमेंट है, डायरेक्टली यूज्ड एज अ फ्यूल, इसमें आपको डाउट हो सकता था, बट by simple elimination, since I know that statement 2 and 3 are correct, the answer to this question would be C, that it can be used directly as a fuel for internal combustion also, it can be blended with natural gas also, क्योंकि ये तो आपका statement है by the government of India, and then of course it can be used in the fuel cell to run the vehicles. So this was my attempt to help you understand the questions which were asked from the science and technology, also the reason why they have asked these questions, and what could be the possible questions in the future examination based on these themes. For more issues, and if you have any queries, reach out to Shubhra Ranjan IAS. Thank you so much.